Good morning, students. Now, our next point is serial repayment of debt with constant principal. So, here our principal becomes constant. So, we will see with the help of one example. So, here 5000 is our principal amount that is paid in 5 years together with 8% interest rate. So, here first we are making 6 columns. First column shows period, second column shows our principal amount. Now third column shows interest rate, fourth one is total owned at the end of period, so summation of second and third column. Yes, fifth one is principal payment. So here a principal payment, so that is constant principal. So we will see how the principal payment we will get. And last column shows total end of principal payment. Yes, so now see, we will see first year calculation. So here first our principal amount is 5000 rupees. So based on 8% interest we are calculating, and we are getting interest rupees 400 rupees, 5000 into 0.08. So here we are getting 400 rupees as a interest. Now third column shows total owned at the end of period. Yes, so here we are making a total for principal amount and interest. So here 5000 plus 400 rupees. So here we are getting 5400 rupees. Now next is principal payment. So here 5000 rupees divided by number of years. Yes, so 5000 rupees divided by 5 years. Here we are making a calculation for 5 years. So 5000 rupees divided by 5 years. Yes, so we are getting 1000 rupees. So this 1000 rupees is constant for every year. First, second, third, fourth and fifth. So this is constant for every year. Yes. Now last column shows total end of period payment. So B plus D. So here whatever the interest we are getting plus principal amount. Yes, so we are making summation. So 400 rupees plus 1000 rupees. So here we are getting 1400 rupees. Now we come to the next year. So here our principal amount that will be deducted. 5000 में से हमें 1000 है वो लेस करना है. So 5000 rupees minus 1000 मतलब हमें 4000 रुपये मिलेंगे. So that is our principal amount for next year. So based on 4000 rupees we are making interest. So we are calculating interest. So here we are getting 320 rupees. So 4000 plus 320. So 4320 rupees. 1000 that is constant for every year. And total end of period payment. So 1000 plus interest. So 1032. Yes. Sorry, 1000 plus 320. So 1320 rupees हमें मिलेंगे फॉर सेकंड ईयर. तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का हमें कैलकुलेशन करना है. ठीक है, जो 1000 रुपीज़ है प्रिंसिपल पेमेंट हम हर एक साल के लिए कर रहे हैं. ठीक है, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है टोटल 5000 रुपीज़ फॉर ईयर 5 ईयर्स. तो यहाँ पे हम हर एक साल हम प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर रहे हैं, दैट इज़ कांस्टेंट प्रिंसिपल अमाउंट. तो इसीलिए 1000 है वो डिडक्ट हो रहे हैं. तो इसीलिए जो अमाउंट है जो सेकंड कॉलम है उसमें से 1000 डिडक्ट होंगे और उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इंटरेस्ट हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है तो 1200 रुपीज़ मिलता है. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी मिलती है 5000. एंड टोटल एंड ऑफ पीरियड पेमेंट. यस, सो 5000 प्लस 1200 रुपीज़. तो हमें कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर वी आर गेटिंग 6200 रुपीज़ एज अ टोटल अमाउंट. तो उतनी हमें क्या करनी है, पे करनी है. पर यहाँ पे कांस्टेंट प्रिंसिपल मतलब क्या कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है कॉन्स्टेंटली डिडक्ट हो रही है. ठीक है, सो दैट इज़ द अनदर टाइप ऑफ रीपेमेंट डेट.
ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ओनली, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट में लास्ट टेबल में लास्ट मतलब जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखी उसमें हमने जो टेबल बनाया है इसी तरह से यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो 5000 पे हम 800 रुपीज़ सॉरी 8% है वो अप्लाई करेंगे तो हमें 400 रुपीज़ मिलेगा। अब यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ओनली, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है दैट इज़ सेम फॉर एवरी ईयर, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चेंज नहीं हो रही है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल पेमेंट है वहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, एट द 5th ईयर हम क्या लिखेंगे, 5000 रुपीज़ हम हैं वो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5400 रुपीज़ मिलेंगे, 54 मतलब 5000 प्लस 400, तो 5400 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 5th ईयर हम पे करेंगे। और टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो 5000 रुपये और 2000 रुपये जो हमें इंटरेस्ट 5 साल का जो हमने कैलकुलेट किया है वो। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हमें 7000 रुपीज़ है वो पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट पेमेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे सेम ये वही एग्जाम्पल है, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट पेमेंट करना है। मतलब यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम में जो सारी वैल्यूज़ है वो सेम आनी चाहिए। मतलब एट द एंड ऑफ 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर। ठीक है, हमें कांस्टेंट एक इंस्टॉलमेंट है वो पे करना है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। 5000 का 800 सॉरी 8 तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो 5000 का हमने ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मतलब इंस्टॉलमेंट है एट द एवरी ईयर हमें पे करना है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। 5000 पे 800 हमने इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट रेट लगा है तो हमें 400 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो 5000 प्लस 400 से 5400 मिलेंगे। प्रिंसिपल पेमेंट है वो आता है 852। ठीक है, तो 852 है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो 852 है, ठीक है, तो यहाँ पे 400 है वो प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 5400 हमें मिल गए। ठीक है, फिर अब यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट है वो 852 आ रहा है, और जो टोटल एंड ऑफ पीरियड पेमेंट है वो 1252 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले से ही बोला है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इन दिस प्लान इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स आर मेड ₹1252। ठीक है, तो ये पहले से ही डिफाइन है कि 1252 रुपीज़ है वो हर एक साल हमें पे करने हैं। ठीक है, सो 1252 में से हम 400 लेस करेंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी 852 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1252 है। ठीक है, लास्ट कॉलम में। ठीक है, तो वो फिक्स है, तो वो हर एक कॉलम में पहले से लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे 1252 है, तो जो 5000 है, तो 5000 में से हम 1252 है वो लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 4148। उस पर हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, तो हमें मिलेगा 331। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी मतलब 4148 प्लस 331, उन दोनों का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 4479 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट कॉलम है उसमें तो फिक्स्ड ही है कि एंड ऑफ पीरियड पेमेंट 1252 है। ठीक है, तो 1252 में से तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1252 है। ठीक है, तो उसमें से हम
नेक्स्ट है 331 है, वो हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 921। उसी तरह से नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में वैसे ही करना है कि 1252 में से जो इंटरेस्ट आता है 250 है, हम वो लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 994। उसी तरह से 1252 में से 178 लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1074। ठीक है। उसी तरह से 1200 में से 93 हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1159 रुपीज़। ठीक है। और जो भी यहाँ पे टोटल एंड ऑफ पीरियड पेमेंट है वो हम प्रिंसिपल अमाउंट में से हम लेस करते जाएंगे सेकंड कॉलम में से। ठीक है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट पेमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीरियल रीपेमेंट ऑफ डेट ऑल एट मैच्योरिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इन दिस प्लान नो पेमेंट इज़ मेड अंटिल एंड ऑफ 5 ईयर व्हेन लोन इज़ कम्प्लीटली रीपेड। ठीक है। मतलब 5 साल के लिए हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर हम पूरा पेमेंट है वो करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी है 5000 रुपीज़। ठीक है। हमें इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर पे 400 रुपीज़, तो 5000 प्लस 400 मतलब 5400 रुपीज़ मिला। प्रिंसिपल पेमेंट है वो भी हमें नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो छोड़ दिया है। ठीक है। फिर क्या करना है, तो टोटल एंड ऑफ पीरियड तो बी प्लस डी। ठीक है। तो जो 400 प्लस ज़ीरो तो हमें क्या मिलेगा 400 रुपीज़ मिलेगा। वो 400 रुपीज़ हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एवरी ईयर पे हम कोई वैल्यू है मतलब कोई पेमेंट है नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एट द एंड ऑफ 5th ईयर हम कर रहे हैं। तो जो भी अमाउंट आएगी, ठीक है, लास्ट कॉलम की, वो हम सेकंड कॉलम जो है अमाउंट ओन एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, तो उसमें हम क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। ठीक है। तो 400 प्लस 5000 करेंगे तो 5400 रुपीज़, उसका हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। फिर लास्ट कॉलम में हमें मिला 432, तो वो हम 432 है वो 5400 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसी तरह से हमें 5832 मिलेंगे, 6299 मिलेंगे, और लास्ट ईयर में मिलेंगे 6803। ठीक है। तो वो जो मिलेंगे, फिर देखो अब लास्ट जो ईयर है 5th ईयर, तो उसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिखी है 5000 रुपीज़। मतलब अब तक हमने पे नहीं किया है, ऑल एट मैच्योरिटी मतलब क्या, 5th ईयर में हम टोटल मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम पे कर रहे हैं। ठीक है। तो वो हमने लिखी, और यहाँ पे जो टोटल है, टोटल एंड ऑफ पीरियड पेमेंट, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे 5544 मतलब 5000 प्लस 544 है वो हमने लिखा है। तो इस तरह से हमारा टोटल हुआ 5544 रुपीज़। ठीक है। और फिर हमने उसका टोटल कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल डेट सिचुएशन। ठीक है। तो मल्टीपल डेट सिचुएशन मतलब क्या, तो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड से आप परचेज करते हो, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या क्या, आपकी क्रेडिट पे आप जो भी थिंग्स परचेज करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो वो आप थिंग परचेज कर रहे हो तो उनको पता है कि आपकी जो सैलरी है वो बेस्ड ऑन योर सैलरी यू हैव गिवन अ क्रेडिट, एंड फॉर दैट यू आर एबल टू परचेज some things up to beyond or up to that limit. Yes, so that is multiple debt situation. ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आप परचेज कर रहे हो, मतलब इट इज़ वन काइंड ऑफ डेट, एंड आफ्टर गेटिंग मनी यू विल पे दिस डेप्ट। यस, सो दैट इज़ मल्टीपल डेट सिचुएशन। तो यहाँ पे मल्टीपल डेट सिचुएशन है, तो ठीक है। तो यहाँ पे उसमें दो मेथड का यूज़ किया है। फर्स्ट वन इज़ एवालांचे मेथड एंड सेकंड वन इज़ स्नोबॉल मेथड। ठीक है। सो व्हाट इज़ एवालांचे मेथड, तो यहाँ पे जो एवालांचे मेथड है, ठीक है, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब इंटरेस्ट रेट है वो पे करना रहता है।
ठीक है। सो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो हमें पहले पे करना रहता है, फिर उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो आफ्टर सम मंथ्स वो डिक्रीज होता है, पहले हाई कर रहा है, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो और फिर उससे लो। सो दैट इज़ एवालांचे मेथड, ठीक है। सेकंड वन है स्नोबॉल मेथड। सो यहाँ पे स्नोबॉल मेथड में क्या है, तो यहाँ पे पहले कम दैट इज़ इनवर्स ऑफ एवालांचे मेथड। तो पहले कम डेट है वो, मतलब कम इंटरेस्ट पे करना है, फिर ज़्यादा करना है, फिर उससे ज़्यादा करना है, फिर ज़्यादा करना है। सो दैट इज़ स्नोबॉल मेथड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज इक्विटी कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो हियर डेब्ट्स आर नॉट इक्वली रीपेड इन कैश बट दे आर कन्वर्टेड इन सम इन्वेस्टमेंट। Yes, some private company use this method and they are issuing some convertible debentures or bonds. Yes, so debentures are issued in an equity share after some time, and this conversion ratio and conversion price are specified at the time of इश्यू। मतलब जब भी वो डिबेंचर है या फिर वो इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो इश्यू करते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर उसकी प्राइस के 100 रुपीज़ के एक शेयर की प्राइस है। जैसे मार्केट में उस कंपनी की प्रेस्टीज है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसकी जो शेयर्स है उस शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। और फिर हमें वो शेयर जब हम सेल करते हैं तो हमें उतना प्रॉफिट होता है। तो बेस्ड ऑन कंपनीज प्रेस्टीज वी आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। सो दैट इज़ इक्विटी कन्वर्जन मेथड। यहाँ पे नेक्स्ट है कॉल ऑप्शन फॉर डिबेंचर रिडीम्पशन, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर आइदर पार्शली कन्वर्टेबल और फुल्ली कन्वर्टेबल। सो इन द केस ऑफ partially convertible debentures or non-convertible parts remain in a debt form and need to pay in a cash. सो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब क्या कि यहाँ पे थोड़ा पोर्शन है, ठीक है, तो वो है वो एज अ डेब्ट फॉर्म में रहेगा और थोड़ा पोर्शन है वो आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। इफ़ कंपनी इशू 10% डिबेंचर्स each of rupees 500, they are convertible into equity shares at the price of rupees 125 per share anytime after third year before fifth year। मतलब 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आप उसको मतलब वो उसको कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यूड बाय गुड कंपनीज कैरी लिटिल लोअर रेट एट द इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कंपनी है, जैसे कि आईटी कंपनीज है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो इश्यूड करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है, दैट इज़ अ पायनर कंपनी in India to make this kind of method of debt repayment. Next है purchase of own debentures from market. So in India and other countries, debentures issuing a company whose debenture are traded in stock market are allowed to buy its own debenture from market if market price market price of bond is favorable. यस, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो इंडिया है और दूसरी जो सारी कंपनीज़ है, ठीक है, जो अपनी डिबेंचर्स है वो इश्यू करती है, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो वो अपने डिबेंचर्स है वो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि फॉर 100 रुपीज़ 12% बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट इंडियन रुपीज़ 80 पर डिबेंचर, देन फॉर कंपनी इट इज़ बेनिफिशियल टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट एंड कैंसल देम, ठीक है। जो 100 रुपीज़ के लिए जो 12% के बॉन्ड जो है ट्रेडेड किए हैं, तो अभी उस डिबेंचर की प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, तो कंपनी कम प्राइस में वो अपने डिबेंचर्स है वो परचेज कर सकती है और उसको कैंसिल भी कर सकती है। सो कंपनी विल बेनिफिटेड थ्रू बाइंग एंड कैंसलिंग रादर देन रीपेइंग देम ऑन मैच्योरिटी।
ठीक है। तो कम प्राइस में वो डिबेंचर्स है वो परचेज कर सकती है या उसको कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि वो ऐसे कम प्राइस में डिबेंचर्स है वो परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, ठीक है। इट इज़ अ पॉपुलर मेथड फॉर डेब्ट रीपेइंग. Next is nominal interest rate. Yes, so if fixed percentage interest 12%, which signifies that the borrower have to pay rupees 12 as a financial service charge on rupees 100 principal amount for 1 year. So usual interest rate in a market on the date of transaction is called nominal interest rate. मतलब आप जैसे सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जो 100 रुपीज़ पे 12% आप इंटरेस्ट ले तो मतलब 12 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे बोरोवर को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. सो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर यूजुअल रेट्स फॉर प्रिवेलिंग कंपनीज इकोनॉमी, ठीक है। कंपनी की इकोनॉमी प्रिवेल करने के लिए दैट इज़ यूजुअल रेट है, ठीक है. इट इज़ गाइडेड बाय RBI पीरियोडिक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये RBI ने भी गाइड किया है कि दैट इज़ अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. इट इज़ लिंक टू बैंक रेट, ठीक है, वो बैंक रेट के साथ भी वो लिंक करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा आइडिया आएगा. इफ़ बैंक पेज 2.5% इंटरेस्ट एवरी 6 months, व्हाट विल बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर ईयर, ठीक है. बैंक है वो हर 6 महीने 2.5% इंटरेस्ट है वो पे कर रही है, तो 1 साल का उसका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है. तो R इक्वल टू मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन अ ईयर इंटू इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे हर 6 महीने कर रही है, ठीक है. तो ईयर में 2 बार उसको करना रहेगा, तो 2 इंटू 2.5%, तो उसका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रहेगा 5%. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंसेस आर कॉज्ड ड्यू टू, अब उसमें डिफरेंसेस है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में, डिफरेंस आ सकता है तो उसकी थोड़ी कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस क्या है. फर्स्ट वन इज टर्म स्ट्रक्चर. सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हायर on longer term security, for example 12% on 10 years, while lower on short term 6% on 182 days on commercial paper, ठीक है. तो टर्म स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो यहाँ पे अगर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा लगता है. टाइम पीरियड अगर कम है तो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगता है. Brand image. So government treasury bond has 9% rate for 10 years, while private company debenture has 12% rate for 10 years, ठीक है. तो यहाँ पे ब्रांड इमेज मतलब क्या, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है तो इसलिए उसकी इमेज अच्छी है, तो वो उसकी बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है फॉर 10 years, और प्राइवेट कंपनी है तो उसका इंटरेस्ट रेट है 12%. फिर नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व इन बोरोवर प्रोजेक्ट. सो हाई रिस्क प्रोजेक्ट लेंडिंग हैज़ हाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ पे अगर हाई रिस्क प्रोजेक्ट है तो उसका इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहता है. जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, पर यहाँ पे हाई रिस्क प्रोजेक्ट है और बोरोवर उसके लिए लोन ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 15% हो सकता है. करंट इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे बूम्स की कंडीशन है या डिप्रेशन की कंडीशन है, ठीक है. तो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो ज़्यादा हो सकता है. या फिर डिप्रेशन की कंडीशन है, मतलब बूम पीरियड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा और डिप्रेशन के टाइम पे उसका इंटरेस्ट रेट है वो कम रहता है. तो बेस्ड ऑन करंट इकोनॉमिक कंडीशन पे इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा या कम
हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे ही हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर डायनेमिक बिजनेस कंडीशन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आर टू बी लिटल हायर और लोअर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बिजनेस की कंडीशन कैसी है उसके बेस पे उसका इंटरेस्ट रेट है वो नॉमिनल से ज़्यादा भी हो सकता है, नॉमिनल से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टर्म दी है, तो यहाँ पे है आर इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, आई इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर पीरियड एंड इफेक्टिव एनुअल रेट है वो है दिया है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ही आपको यहाँ पे दिया है कि इफ़ डिबेंचर्स ऑफ 1 lakh फॉर ईच ऑफ इंडियन रुपीज़ 100 विथ 12% कूपन रेट redeemable after 10 years and incurred 8,000 rupees issue or flotation cost, so what will be the effective interest rate। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे परसेंटेज इंक्रीज होता है उससे हम कैसे इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो परसेंटेज मतलब कितने इंक्रीज होता है तो वो देते फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिबेंचर कॉस्ट इंटू 1/n इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो 8,000 रुपीज़ है। तो 8,000 डिबेंचर की प्राइस क्या है 1 लाख, 10 ईयर के लिए तो 1/10 इंटू 100 मतलब 100 एज अ मतलब 100 पे 12% कूपन रेट लगता है। ठीक है, तो 100 है वो 100 पे 12% कूपन रेट है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू 100 किया है। ठीक है, तो 8% इंक्रीज़ होता है। अब इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें फाइंड आउट करना है, तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है प्लस जो भी इंक्रीज ही हुआ है उस पर हम करेंगे। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा 12%। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हुआ तो 8.8 है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो हमारा इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा 12 प्लस 0.8 मतलब 12.8%। ठीक है, नेक्स्ट है यील्ड रेट टू लेंडर इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल डेट जो है, ठीक है, दैट कैरीज अ फिक्स्ड कूपन रेट टिल इट्स मैच्योरिटी। तो यहाँ पे उसका फिक्स जब तक एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर्स जब तक हम पेमेंट नहीं करते तब तक उसकी जो चार्ज है वो फिक्स्ड रहता है। बट बिफोर मैच्योरिटी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्जेस ड्यू टू फ्लोरिशिंग और डिप्रेस्ड कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा। तो इफ़ डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ ईच ऑफ 100 विथ 12% कूपन रेट redeemable after 10 years. Now after 2 years a nominal interest rate goes down to 10%। पहले नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 12% था, अब आफ्टर 2 years वो हो गया 10%। सो व्हाट विल बी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 100 बॉन्ड आफ्टर 12 years। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस तो कूपन रेट डिवाइडेड बाय करंट नॉमिनल रेट इनटू ईच बॉन्ड रेट। ठीक है, मतलब हर एक बॉन्ड की 100 रुपीज़ प्राइस है। तो 12 करंट कूपन रेट दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 मतलब जो करंट नॉमिनल रेट अभी 10% जो हो गया है वो। सो 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 तो हमें कितना मिलेगा 120। तो वो करंट मार्केट प्राइस है, पहले 100 रुपीज़ थी अब हो गई 120। इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरेस्ट अर्न डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो इंटरेस्ट अर्न कितना किया था, ठीक है, तो 12% था और करंट मार्केट प्राइस अभी क्या है तो कि 120। अभी हमने यहाँ पे बोल दिया कि जब तक वो मैच्योर्ड नहीं हो जाते फिनेंशियल डे तब तक उसका फिक्स्ड फाइनेंशियल मतलब जो फिक्स कूपन रेट 12 ही रहेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट अर्न है वो 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा
10%। सॉरी, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10%। ठीक है, यहाँ पे ओके। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेज टू बोरोवर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डेट इज अलाउड टू डिडक्टिबल एक्सपेंसेस फॉर इनकम टैक्स पेयर, सो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू बोरोवर इज रिड्यूस्ड बाय टैक्स एडवांटेजेस ऑन डेट रिफंडिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो डिबेंचर की 1 लाख के डिबेंचर्स है, हर एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपीज़ है, 12% कूपन रेट है और 10 ईयर के बाद हम रिडीम करेंगे। कंपनी फॉल्स अंडर 3% टैक्स स्लैब, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमें टैक्स का एडवांटेज भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कूपन रेट देखो, यहाँ पे हर एक में फॉर्मूला अलग है। ठीक है, टैक्स एडवांटेज टू बोरो है तो उसकी फॉर्मूला अलग है। ठीक है, आगे भी उसकी फॉर्मूला, यील्ड रेट है तो उसकी फॉर्मूला भी अलग है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, सारी फॉर्मूला आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी फॉर्मूला है कूपन रेट इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो कूपन रेट हमारा कितना है, 12% है। 1 माइनस 0.3 मतलब 0.3 मतलब 30% है। ठीक है, टैक्स रेट तो हमें मिलेगा 0.084। ठीक है, और परसेंटेज में करेंगे कन्वर्ट इनटू 100 करेंगे तो 8.4 उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसमें जो भी सारी फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है कैश फ्लो का, तो वो आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर है वो एंड करते हैं। थैंक यू।